grow more confidence and which would help them later. So parents, I request you to all maintain silence. Please parents. Our annual day function is getting started and please not to come forward for click the photos and videos for parents. This is for parents. Now I will call upon the stage Master Tarush. Please come Master Tarush. To yes, Master Tarush will give this welcome speech. Warm welcome to our annual day celebration with the theme A Journey with Lord Krishna. Our adorable kindergarten stars are all set to take you on a magical ride to the tales of Lord Krishna. In their tiny footsteps, you witness the mischievous Krishna, the one who played an enchanting flute, and the brave Krishna who fought with love and wisdom dressed in vibrant colors. A little one will dance to the tunes of Vrindavan, capturing the essence of eternity and love. Today, let's celebrate the spirit of Krishna, pure love, eternal friendship, and the joy of learning. Our little Krishnas are here to spread smiles, and we're grateful to have you join us on this enchanting journey. Jai Shri Krishna. Let the celebration begin. Thank you for being a part of this delightful day. Very good. Now I will call upon the stage our principal, Mrs. Sapna ma'am. Good evening, parents. It's nice to see you all for this annual function. It is with immense joy and pride that I stand in front of you as we are gathered here to celebrate the annual function of our beloved students. This day is filled with laughter, joy, and boundless energy of our little ones who have charmed into our hearts. Before we get into the festivities of the day, I would like to take a moment to thank you parents, teachers, and the entire Daffodils community for their support and commitment of the well-being and growth of our children. Your partnership is invaluable, and together we create an environment where our young learners can flourish. Today, we are not just celebrating an event, we are celebrating the journey of these little minds that have blossomed under the care and guidance of our dedicated educators. Our kindergarten is not just a place of learning, it is a heaven where dreams take flight and the foundation for the lifetime of learning is laid. The teachers, with their patience and passion, have nurtured their young minds, fostering a love for knowledge that will accompany them in their educational journey. As we witness these delightful performances and presentation prepared by our little ones, let us not only applaud their performances, act, but also reflect to the early education. The first year of a child's life is like a canvas, waiting to be painted with creativity and knowledge. It is a role of our educators and parents to provide the brushes and guide them when they explore this canvas. In the world of kindergarten, every day is an adventure, from the show and tell to the joy of making new friends. Our little ones are sponge soaking and in the wonders of the world around them. It is a privilege to watch them grow and learn and embrace the values that will shape the responsibility and compassionate individual. To the parents, I say thank you for entrusting us with your most precious treasure. Your faith is our ability to provide a nurturing environment for your children. The journey of education is a partnership, and together we pave the bright future. In the conclusion, let us cherish this day of celebration, a day that marks not just an event but the beginning of a lifelong love for learning. Our kindergarten is not just a school, it is a community, a family, where each members play a vital role in shaping the future. Thank you, and let the festivities begin. And I'll request the parents, the children are too small, so please encourage them by clapping whenever they come on the stage, because the playgroup and nursery children have already started crying.
just an upload from your side. Thank you so much. And a request, please don't come in front for the photograph because the children, once they see you, they won't dance. Okay? Thank you, parents. Thank you so much. धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुसम्यहम् भगवान कृष्ण ने कहा था जब जब इस पृथ्वी पर धन की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है फिर तब तक मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा और अंदर लेता ही रहूंगा राजा कंस कौन थे वो श्री कृष्ण जी के बाबा थे अभी श्री कृष्ण जी राजा कंस ने अपनी सखी बहन उनके पति वासुदेव जी को ना ब्रेक बन जा रहा है जाते देखिए अपने सुनता है देवकी का आठवां पुत्र राजा कंस का विनाश का कार्य करने वाला था का जन्म हुआ है और राजा और वासुदेव जी उनको लेके जा रहे हैं वृंदावन लेके जा रहे हैं बारिश हो गई थी उन्हें यमुना नदी को पार करने भी जाना था और यमुना नदी ने दूसरा रूप धारण किया है सोना सो रहे सोया गोकुल ग्राम नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम
बहुत नटखट और शरारती है। उन्हें माखन बहुत ही ज्यादा पसंद है कि यशोदा मैया उनको माखन देती है, उनसे उनका मन ही नहीं भरता। तो चलिए अभी हम देखते हैं कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैसे माखन चुराते हैं।
खाली क्या वाला क्या बात। मधुबन में भले कान्हा किसी को भी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर
खूबियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। नादे से नादे से नादे से नादे से नादे से नादे से वन में बहुत सी लीलाएं की है, बहुत से संकटों वृंदावन वासियों को बचा है। उन्हीं में से एक है कालिया मर्दन। तो हम देखेंगे कालिया मर्दन का है। कान्हा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ मिथिला, चलो हम चलते हैं। चलो ना यमुना किनारे खेलने चलते हैं। चलो ना चलते, चलो चलते हैं। कान्हा अब गेंद कैसे निकाले? सुना है यमुना का पानी विषैला है। मुझे माँ ने यहाँ आने से मना किया था। डरो मत मिथिला, मैं हूँ ना, मैं अभी गेंद लेके आता हूँ। नहीं नहीं कान्हा मत जाओ, सभी लोग हमें को डांटेंगे। तुम्हारी भैया भी तुम्हें को डांटेंगी। तुमने यहाँ का पानी विषैला किया है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। दादी, माफ करो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। बेटा दमन प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, ये रंग ना जाने कोई
सपना बोली मुबारक हो तुमको ये रंग भरी होली। राधा और श्री कृष्ण में नोक-झोंक हुआ करती थी। एक दिन राधा ने कन्हैया को कीचड़ में गिरा दिया और फिर कन्हैया ने कह दिया कि अब से कीचड़ की भी होली बनाएगा। चलो अब देखते हैं कि राधा और श्री कृष्ण की रंग भरी होली। राधे कृष्ण, क्या आपको पता है कि कृष्ण जी को राधा इतनी क्यों पसंद थी? वो कैसी दिखती थी? कितनी बातें थी। चलो आइए हम लोग गाने के माध्यम से देखते हैं।
तैयारी में व्यस्त है। उन दिनों बजरा के लोग अच्छी बारिश के लिए देवराज इंद्र की पूजा करते थे। पर कानों को ये बात खटक रही थी कि अच्छी बारिश के लिए देवराज इंद्र की पूजा क्यों करें। तो आइए अब हम देखेंगे कि आगे वाले ऐड के द्वारा देखेंगे कि कान्हा ब्रजवासी लोग से किसकी पूजा करवाता है। भैया आप क्या कर रहे हो? पूजा की तैयारी कान्हा, इंद्रदेव की पूजा की तैयारी। उनकी पूजा क्यों भैया? देवों के देव है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। ये पूजा तो हम पुरखों से करते हैं। पैसे की नाच से हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। कान्हा ऐसे ना बोल, इंद्रदेव क्रोधित हो जाए। भैया वो तो देव है, वो भला क्यों क्रोधित होंगे? भगवान अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते। कान्हा ऐसे ना बोल। कान्हा के बाबा आप इसे समझाओ। मैं क्या समझाऊं यशोदा? कान्हा तुम बताओ, हम इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? बाबा हम ग्वाले हैं, हमारा जीवन गायों के साथ जुड़ा है। हमें दूध देती है, माखन देती है, तो उनकी पूजा करो। और गायों का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है, इसीलिए वनों की पूजा करनी चाहिए बाबा। हाँ कान्हा तुम सही बोल रहे। बाबा पूजनीय तो हमारी यमुना नदी है, उसके पानी से हमारे वृक्ष जीवित है। हमारा पर्वत पूजनीय है, जो जाते हमें रोक कर वर्षा करवाते हैं और वर्षा से ही हमारा जीवन है। तो पूजनीय तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, तो उनकी पूजा करो। कान्हा ऐसे ना बोल, इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। गुस्से से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। कान्हा देखिए इंद्रदेव को गुस्सा, उनसे माफी मांग कान्हा। कान्हा मान मेरी बात, नहीं तो पूरा गांव टूट जाएगा। कान्हा तूने ही हमें मुसीबत में डाला है, अब तू ही निकाल इसे बाहर। हाँ आज गोवर्धन भगवान ही हमारी रक्षा करेगा। मोर मुकुट धर वेणुधर गिरधर बन गए आज, गिरधर बन गए आज। राधिका जब मुरली बजाए घनश्याम, बिना बांसुरी के श्री कृष्ण अधूरे। श्री कृष्ण की बांसुरी के धुन सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बांसुरी के धुन पर राधिका कैसे थिरकती। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी।
संग झूमे गिरधारी, भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। गोकुल के रजगण सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के। धरा इस क्षण को साजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। राधा कुंद चंद कान्हा सलोन श्याम, कान्हा सलोन श्याम, कान्हा सलोन श्याम। छवि सुंदर दोनों की, दोनों है प्रेम धाम, दोनों है प्रेम धाम, दोनों है प्रेम धाम। बेला मिलन की आई छाया है रस रंग, धरती सब अंबर में छाई है नवतरंग। गण में राधा कृष्ण है समाये, जहाँ देखे नैन वहीं दोनों की छवि पाए, दोनों की छवि पाए, दोनों की छवि पाए। भगवान कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते थे, पर एक दिन गोपियों की विनती पर एक गोपी के लिए कृष्ण बने। सभी के साथ पूरी रात नृत्य करते थे, जिसे महाराज के नाम से जाना जाता है। यमुना तट का दृश्य कई कृष्ण आकर रचे रास गोपियों संग। परम प्रेम में राधिका, कृष्णा परम उल्लास। मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। आज जरा निज भाग्य में देखो, जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो होकर मनधारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी।
students for making this annual day memorable. Special thanks to our dedicated teachers and staff. Your hard work and commitment are truly appreciated. Parents, your trust and support mean the world to us. A big round of applause to our talented students for their outstanding performance. Thank you. And all the teachers of Daffodil to come on the stage for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय